آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ ازواج مطہرات میں نمایاں ہے۔ کئی ساری صحیح روایات حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہیں جو آپ کی فضیلت اور مقام و مرتبے کو بلند کرتی ہیں اور آپ کی رفت کی تکمیل کا سبب ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی خدیجہ کی فضیلت منقول بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی ثابت ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ ان کی موجودگی میں کئی ساری ازواج مطہرات تھیں، وہ کہتی ہیں کہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر مجھے کوئی رشک نہیں ہوا سوائے حضرت خدیجہ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو حضرت خدیجہ کا ذکر اس طرح کرتے کہ مجھے حضرت خدیجہ پر رشک ہوتا۔ یعنی رشک کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتی کہ کاش حضرت خدیجہ کا جو مقام ہے وہ مجھے مل جاتا۔ یہ نہیں ہے رشک کا مطلب کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ سے کوئی بغض کوئی اناد رکھتی تھی۔ بغض اناد والا مسئلہ نہیں تھا، عام طور پر سوکنوں کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ نہیں تھا، صرف رشک کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح کاش وہ ان کو یاد کرتے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو اس طرح تذکرہ کرتے۔ اب یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ ان کو یاد کرتے اور بس اوقات تو اتنا یاد کرتے کہ مجھے رشک ہوتا کہ کاش اتنا تذکرہ اور جتنا یاد حضرت خدیجہ کو کرتے ہیں کہ کاش یہ مجھے یاد کرتے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ طبرانی کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں بھی کرتے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے کہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھے یہ ملامت نہ کرو، نہ خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ کہو۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اپنا سارا مال مجھے پیش کر دیا تھا، اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب کہ سارے لوگ میری مخالفت کر رہے تھے، اور اس نے اپنا مال اور اپنی جائیداد ساری میرے اوپر وقف کر دی تھی۔ تو خدیجہ میرے لیے بہت احسان مند تھی اور اس نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے ایک جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے جو حضرت خدیجہ کو ملے گا ان کی اس قربانی کی وجہ سے۔ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو کیونکہ میری ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے ساتھ جتنا تعاون حضرت خدیجہ نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خدیجہ کو اعلیٰ مقام دے دیا اللہ پاک نے جنت کے اندر، اور ان کے اللہ پاک نے بخشش فرما دی۔ یہ روایت صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ پہلی عورتوں کے اندر جتنی پہلے زمانے میں عورتیں تھیں ان میں اگر کوئی مقام و مرتبے والی عورت تھی تو وہ حضرت مریم تھی، یعنی مریم بن عمران حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، وہ فضیلت والی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کے اندر اگر کوئی فضیلت والی عورت ہے تو وہ حضرت خدیجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح نسائی کے اندر سنن نسائی کے اندر ایک روایت ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دنیا کے اندر 4 عورتیں ایسی ہیں جو بڑے مقام و مرتبے اور فضیلت والی ہیں۔ وہ 4 عورتیں کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، ایک حضرت مریم، اور دوسرے نمبر پر حضرت بی بی فاطمہ، اور تیسرے نمبر پر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور جس نے اسلام قبول کیا، اور اسی اسلام قبول ہونے پر فرعون نے بی بی آسیہ کو قتل شہید کر دیا تھا۔ اب یہ بھی مقام و مرتبے والی عورتیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مقام و مرتبے والی جو عورت ہے وہ حضرت خدیجہ ہے، یعنی 4 عورتوں کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے تھے۔ اور ایک روایت اور بھی ملتی ہے جن میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ 4 عورتیں جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
और रिवायत एक मिलती है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं भी कहते थे, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि हजरत खदीजा वो औरत हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम किया है। खुद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले एतकाफ करते थे और अल्लाह पाक की इबादत करते थे, और हफ्तों हफ्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अल्लाह पाक की इबादत करते थे, तो हजरत बीबी खदीजा इस तरह तावन करती थी, वो पहाड़ी के ऊपर कार थी, इसके बावजूद हजरत खदीजा अपने घर में खाना तैयार करती और खुद खाना पका कर तैयार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाती थी। ये मामूल था हजरत खदीजा का। हालांकि साहिब हैसियत, बड़ी मालो दौलत वाली और कुरैश के अंदर बड़ी अशराफ खातून में से एक खातून थी, इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा हफ्ता घर नहीं आते थे, वो औरत अपने घर में खाना पकाकर तैयार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह शाम पहुंचाती थी। तो एक दफा ऐसा हुआ, हजरत बीबी खदीजा जब खाना लेकर गार हिरा की तरफ जा रही थी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बीवी जो खाना तैयार करके आपके पास आ रही हैं, इस अपनी बीवी को ये कह दे ये फला फला चीजें पका कर आ रही हैं, अब ये जब आए तो इनको ये बता दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसको सलाम करता है। अब जब हजरत खदीजा आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को बड़े रक्श भरे नजरों से देखा। हजरत खदीजा कहते हैं कि आपने पहली दफा इस तरह देखा तो मैंने पूछा कि आप इस तरह क्यों देख रहे हैं, तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलाम भेजता है, और दुनिया के अंदर किसी औरत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त जिब्राइल के जरिए जो सलाम भेजा तो हजरत खदीजा उनमें है। और इसी तरीके से हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मिलती है, उसमें ये भी है अल्फाज, इसी रिवायत के आखिर में ये रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजा को कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सलाम भेजता है, तो हजरत खदीजा ने वापस में जवाब दिया कि हुआ सलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला तो खुद ही सलाम है, मेरा वापस सलाम अल्लाह तबारक व तआला को भी, वो तो खुद ही सलाम है, लेकिन साथ ये भी कहा कि जिब्राइल पर भी मेरा सलाम हो और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी अल्लाह तबारक व तआला का सलाम हो। यानी वापस हजरत खदीजा ने वापस जवाब भी इस्लाम कर दिया। और इसी तरीके से हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला से एक रिवायत ये भी मिलती है, और वो फरमाती हैं कि हजरत खदीजा का मकाम और मर्तबा हमें उस वक्त मालूम हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गज़वा बदर के बाद कैदी आए और उन कैदियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल इत्तेफाक सहाबा के मशवरे से जब फैसला किया तो फैसला ये किया कि जो बंदा काफिर कैदियों में जो बंदा अपना पर फिदिया अदा कर देगा तो वो रिहाई पाकर अपना चला जाएगा घर में। तो उनमें अबूल आस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, अभी इस्लाम कबूल उन्होंने नहीं किया था, वो भी मौजूद थे। ये हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खावंद थे। तो जब वो कैदी बनकर सामने आए तो मक्के के अंदर ऐलान हो गया कि अपने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया भेजें। तो हजरत बीबी ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने अपना एक हार फिदिये के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवा दिया कि मेरा ये हार ले लें और अबूल आस को आजाद कर दें। तो वो जो हार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस हार को उठाया और रश्क से रिक्कत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिक्कत तारी हुआ। अल्फाज आते हदीस के अंदर वो रिक्कत तारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल आए। पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये हार वो है जो हजरत खदीजा का था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवी खदीजा याद आ गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हार को उठा कर देखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल आए और रोने लगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि ये हार मैं चाहता हूं कि वापस अपनी बेटी को यानी हजरत बीबी ज़ैनब को वापस भेज दूं, क्योंकि हजरत खदीजा का हार था और जब हजरत ज़ैनब की शादी हुई तो हजरत बीबी खदीजा ने तोहफे के तौर पर हजरत अपनी बेटी हजरत ज़ैनब को दे दिया था। वो ही हार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इत्तेफाक मशवरा करके फिर फैसला ये किया कि अबूल आस को भी छोड़ दिया और वो हार भी अपनी बेटी को वापस दे दिया। इससे भी ये साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा को कितना याद करते थे और कितना
मकाम था हजरत खदीजा का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में हजरत खदीजा रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और बीवी के साथ निकाह नहीं किया। जब हजरत खदीजा की वफात हुई उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अज़वाज मुताहरा से निकाह किया और आपके निकाह में कई सारी औरतें आई, लेकिन जब तक हजरत खदीजा रही उस वक्त तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और औरत से भी निकाह नहीं किया। इसी तरीके से एक रिवायत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक ये भी मिलती है, वो फरमाती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुर्बानी करते या किसी जानवर को ज़िबा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का या जानवर के ज़िबा करने के बाद जो गोश्त आता था उस गोश्त को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा की सहेलियों में भी तकसीम करते। और एक रिवायत ये भी मिलती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई घर में कोई अच्छी चीज पकती या बाहर से कोई चीज आती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफे के तौर पर, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये फलां औरत के घर में पहुंचा के आओ, क्योंकि वो हजरत खदीजा की सहेली होती थी और हजरत खदीजा के साथ रहती थी। फलां औरत को दे दो, यानी जितनी हजरत खदीजा की दोस्त और सहेलियां थी औरतें, उनकी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल करते और उनकी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत करते, उनके पास भी अपना साजो सामान और उनकी भी ख्याल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहते थे। इसी तरीके से अक्सर रिवायतें मिलती हैं, एक वो रिवायत भी आप सामने रखें हजरत खदीजा के हालात और आपकी फजीलत के लिए कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए जब अपने घर में आए तो हजरत बीबी खदीजा के वो हौसला देने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउन करने का अंदाज देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप घबराए ना, परेशान हो, मैं आपके साथ हूँ, आपको जहां भी वक्त टाइम मिलेगा, जहां भी कोई मौका मिलेगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। पहली खातून थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आई। अभी तक किसी मर्द ने ईमान नहीं कबूल किया था, किसी और ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन हजरत खदीजा ने पहले साथ दिया और कहा आप घबराए ना, मैं आपके साथ हूं। तो इस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो घबराहट खत्म हो गई। और फिर ये भी बात आती है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ तो हजरत खदीजा इतनी मालदार औरत थी कि कुरैश के अंदर इतना कोई मर्द भी मालदार नहीं था, इतनी जायदाद थी, हत्ता कि ऊंटों की कतारें जब तिजारत के लिए हजरत खदीजा के निकलती तो मक्का से बाहर जहां तक नजर जाती तो हजरत खदीजा के ऊंट ऊंट नजर आते थे तिजारत वाले। लेकिन इतनी जायदाद सारी के सारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। एक रिवायत में ये आता है कि एक वाकया ये हुआ कि एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीला के लोग आए जो बेयारो मददगार थे, जिनके पास कोई साजो सामान नहीं था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आल अवाल देखे और जब हालात देखने के बाद हजरत घर में आए हजरत खदीजा को कहने लगे काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे जायदाद देता, कुछ माल असबाब मेरे पास होता तो इन कबीलों वालों के साथ मैं बड़ा ताउन करता जिन्होंने अपने इस्लाम के खातिर अपने जायदादें तक छोड़ दी। तो हजरत बीबी खदीजा ने जब ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुने, घर में गई और थोड़ी देर के बाद अपनी पूरी जायदाद में से सोने और चांदी के सिक्के लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे थे आपके सामने ढेर कर दिया। इतना ढेर किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनार और दिरहम के पीछे छुप गए और फिर कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा खजाना आपका है, जिस तरह चाहें आप इनको गरीबों में तकसीम कर दें, चाहे सारा की सारी जायदाद अल्लाह के राज में खर्च कर दें, मैं आपसे नहीं पूछूंगी। इस तरह हजरत खदीजा ने अपना माल असबाब और अपनी जायदाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत खदीजा के साथ वफा की, हत्ता कि यहाँ तक वफा की जिस साल हजरत बीबी खदीजा वफात पाई हजरत बीबी खदीजा ने उस साल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हज़न का साल कहा, यानी ये गम का साल है। गम का साल इस वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल बड़ा सोग मनाया, बड़ा गम मनाया, क्योंकि हजरत बीबी खदीजा का ताउन इस्लाम के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खत्म हो गया। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत खदीजा को खुद कब्र में उतारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कब्र के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिठाई और अपने हाथों से दफन किया और अपने हाथों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी खदीजा के कब्र के ऊपर मट्टी डाली। जब मट्टी डाल रहे थे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू थमते नहीं थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन थे, सहाबा कहते कि हम देख रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन थे। हमें हौसला देने वाली शख्सियत जो हमें कहते थे कि अल्लाह के रजा
कज़ा के लिए अपने आप को सब्र में लेकर आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालत ये था। फिर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खदीजा के बारे में मुझे कुछ ना कहो। बहरहाल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा अज़वाज मुताहरात में बहुत नुमाया है, बहुत आला है। कई सारी ऐसी रिवायत मिलती हैं जिनसे हजरत खदीजा का मकाम बहुत ऊंचा नजर आता है।